السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور تیسرا سوال حضرت کہ جب دلہن کو آمین پڑھایا جاتا ہے تو کیا وداع کے وقت ہی پڑھایا جائے یا جب شادی کے دن صبح کا وقت ہو اس وقت پڑھایا جائے؟ دیکھیے، یہ چونکہ قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے اور اس کو یہاں کی زبان میں آمین کہتے ہیں، تو جس وقت فرصت کے لمحات میسر آ جائیں اس وقت حصول برکت کے لیے پڑھا لیا جائے، اس کے لیے کسی وقت کے تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پڑھانا چاہیں تو اس وقت پڑھائیں جس وقت نکاح اور ایجاب و قبول کا وقت ہوتا ہے، تاکہ قرآن مقدس کی برکت اس دلہن کو نصیب ہو جائے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ مدرسے میں لڑکیاں حیض کی حالت میں پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، انہوں نے جو پڑھا ہے میں اس کا ذکر بار بار نہیں کروں گا۔ جب بھی ہم حیض کا ذکر کریں گے تو اس کو ہم ایام ممنوعہ کہیں گے۔ جب بھی ہم ایام ممنوعہ کہہ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ پوری نشست میں آپ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ بار بار ان الفاظ کو اپنی ماؤں اور بہنوں کے سامنے میں لینے کو مناسب نہیں سمجھتا اور مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ آپ اس کو اس اصطلاح سے سمجھ لیں کہ میں جب بھی ایام ممنوعہ کہوں تو آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایام ممنوعہ میں عورتیں، بچیاں مدرسہ پڑھنے کے لیے آ سکتی ہے، لیکن وہ قرآن مقدس کو نہ چھوئے اور قرآن مقدس سے وہ دور رہے، اور الفاظ کو جب اس کے استاد یا معلمہ پڑھائے تو بالکل الفاظ کو توڑ توڑ کر کے پڑھائے۔ اور بہت سی جو صورتیں ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کی توحید کا یا اس کی حمد کا بیان ہے، جیسے چاروں صورتیں ہیں جسے ہم چار قل کہتے ہیں، تو قل ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد توصیف یا بطور دعا، اسی طرح آیت الکرسی کو جو ہے وہ بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے۔ چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں ایام ممنوعہ میں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ اگر ان ایام کے اندر وہ الفاظ کو توڑ توڑ کر، جیسا کہ معلمات جانتی ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے کہ الفاظ کو توڑ توڑ کر کے اگر پڑھائے تو اس حالت میں پڑھایا بھی جا سکتا ہے اور اس حالت میں پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اسی طرح ان ایام کے اندر جیسے ہم اعمال کرتے ہیں کہ سوتے وقت چاروں قل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو ان ایام میں بھی عورتیں پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ بطور وظیفہ قرآن کی نیت سے پڑھتی تھی، وہ قل ہٹا کر کے صرف اس کو جو ہے وہ اللہ کی حمد یا بطور دعا، اور آیت الکرسی کو بھی اسی نیت سے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ چاروں قل سے قل ہٹا کر جیسے آپ پڑھتی ہیں قل هو اللہ احد، تو قل ہٹا کر یہاں سے پڑھیں آپ ان ایام میں هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اسے قرآن کی نیت سے نہیں، بطور دعا یا بطور اللہ کی حمد کے اس طرح آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اسی دوران ایام ممنوعات شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ کیا وہ نماز ختم کر سکتی ہے؟ کیا اس کی وہ نماز قبول ہوگی؟ دیکھیے، یہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ایک فطری چیز ہے، اس پر عورتوں کا اختیار نہیں، یہ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ نماز انہوں نے شروع کی ہے، تو اگر وہ نماز کے اختتام پر ہے، جیسے التحیات وہ پڑھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ التحیات مکمل کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد پڑھ کر سلام پھیر دے اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اس طرح سے وہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ نماز کی آخری
पोजीशन में है, आखिरी हालत में है तो। और अगर जो है वो नमाज उसने अभी शुरू ही की थी कि ऐसी हालत आ गई, तो कभी कभी चूँकि शुबह के तौर पर भी ऐसा हो सकता है, तो शुबह से बचने के लिए ये है कि औरत अपनी नमाज को मुकम्मल करें, इसलिए कि ख़वातीन इस मसले को बहुत ज़्यादा समझती है और जानती है कि कभी कभी सर्दियों के मौसम में भी या वसवसे की बुनियाद पर भी शुबह हो सकता है, तो जब तक कि देख ना लिया जाए उस वक्त तक के मामले की तहकीक नहीं होती। इसलिए ख़वातीन जो है वो सिर्फ शुबह की बुनियाद पर ऐसा ना करें, नमाज मुकम्मल कर लें, और उसकी वो नमाज अगर वो अय्याम ममनुआ शुरू हो चुके थे तो उस पर तो नमाज का हुक्म ही उन दिनों उठ जाता है, इसलिए नमाज हुई या नहीं हुई एक सवाल तो अलग है। जैसे कि हदीस पाक है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे नमाज में वसवसा आ जाए नमाज वज़ू के टूटने का, तो मैं सिर्फ वसवसे की बुनियाद पर नमाज नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं नमाज को मुकम्मल करूंगा। तो इस तरह से जो है वो नमाज मुकम्मल की जा सकती है, वसवसे या शुबह की बुनियाद पर नमाज को तोड़ा नहीं जा सकता। एक औरत ने एक और सवाल लिख कर भेजा है कि वो लिखते हैं कि मुझे मेरे शौहर ने मेरे 2 लड़के 6 दिन के थे तब से मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया है, और साल 2013 तारीख़ 7 जून को पूरे नाम के साथ एक तलाक लिखकर फ़ोन पर मैसेज भेजा, तो एक ही तलाक दी है, तब हम क्या मियाँ बीबी कहला सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर शौहर और बीवी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से दूर रहे, तो जब तक के शौहर तलाक न दे उस वक्त तक तलाक वाक़ई नहीं होगी, या काज़ी शरीयत निकाह जब तक फ़स्क न करे उस वक्त तक भी दोनों में जो है वो तलाक का हुक्म नहीं दिया जाएगा। एक बात ये है। दूसरे ये कि किसी शख्स ने उसकी बीवी को उसने एक तलाक लिख करके भेजा मोबाइल पर, तो आपको चाहिए कि आप उससे तहकीक करें, बड़ों को भेजकर या बात करके पूछवाइए क्या ये मैसेज उन्होंने ही किया है। अगर वो उसका इकरार कर ले तो एक तलाक पड़ गई। अब एक तलाक देने के बाद चूँकि उन्होंने 3 मरतबा अय्याम ममनुआ आकर गुज़र जाने तक अगर रुजू नहीं किया, तो वो जो एक तलाक रजई थी वो बाइन हो गई, और अब जो है उसके बाद इद्दत गुजार कर औरत और शौहर के अंदर दोनों में जुदाई पैदा हो गई, और अब ये जो बीवी है और खातून है ये उसकी बीवी न रही, इसलिए कि इस्लाम से पहले ऐसा होता था कि लोग अपनी बीवियों को एक तलाक दे करके छोड़े रखते थे, और न फिर वो मुकम्मल तौर पर निकाह में रहती थी कि वो उसकी बीवी कहलाए, और न वो किसी के साथ जा कर के शादी कर सकती थी। इस तरह औरतों का इस्तेसाल किया जाता था और उन्हें जलील किया जाता था। इस्लाम आया तो उसने ये कानून ख़त्म कर दिया और कहा कि अगर कोई एक तलाक देता है और वो 3 मरतबा अय्याम ममनुआ आकर गुज़र जाने तक अगर वो रुजू नहीं करता, तो वो तलाक रजई जो है वो बाइन में तब्दील हो जाएगी, और उसकी इद्दत के बाद शौहर बीवी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसकी तहकीक कर ली जाए, और यहाँ पर जो ज़िम्मेदार उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनसे मज़ीद इस सिलसिले में मशवरा कर लिया जाए, वो जो हुक्म दे उस पर अमल किया जाए। जनाबत की हालत में किसी चीज़ को छूने से या खाने पीने से क्या वो चीज़ नापाक हो जाती है, या ज़मीन पर चलने से क्या ज़मीन नापाक हो जाती है, और फिर क्या इन सारी चीज़ों को धोना ज़रूरी है?
जनाबत की हालत में हुक्म ये है कि जितनी जल्दी हो गुस्ल करें, कि जिस घर के अंदर जनाबत वाले मर्द या औरत रहते हैं उसमें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप तो समझते ही होंगे जनाबत किसे कहते हैं। मियाँ बीवी जब वजीफ़े ज़ौजियत अदा करते हैं तो उससे जो नापाकी होती है उसको जनाबत कहते हैं, और जल्द से जल्द जनाबत का गुस्ल करने पर बहुत बड़े अज्र की बशारत है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि जो जनाबत का गुस्ल जल्दी से जल्दी करे, जितने गुस्ल के कतरात टपकेंगे हर कतरे की तादाद के बराबर अल्लाह फरिश्ते पैदा फरमाएगा और फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और अगर उसी हालत में इंसान नापाक पड़ा रहे तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं, बेबरकती है, उम्र में कटौती है, रिस्क की बरकत उठ जाती है, ये सारे मसाइल हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द गुस्ल किया जाए। मुझे याद आता है कि बादशाह तैमूर लंग की ज़िंदगी में पढ़ रहा था तो उससे पूछा गया कि बादशाह तेरी कामयाबी का राज क्या है। तो बादशाह तैमूर लंग ने कहा कि मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने जनाबत की हालत में सूरज को तुलू होते हुए देखा, यानी कभी मैंने इस हालत में सुबह नहीं की कि मैं नापाक रहा हूँ। इसी की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी हुकूमत, सल्तनत और रोब और दबदबा अता फरमाया है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके गुस्ल जनाबत कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा कहते हैं कि मैं रात के आखिरी पहर में वजीफ़े ज़ौजियत अदा करता हूँ इसलिए कि मुझे देर तक के नापाक न रहना पड़े। रात के आखिरी पहर में वजीफ़े ज़ौजियत अदा करके जल्दी से गुस्ल कर लेता हूँ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है जो जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन वो उसी हालत में उठेगा। यानी अल्लाह अकबर, अगर आप नापाकी की हालत में मरते हैं तो सोचिए कि अंजाम क्या होगा। इसलिए जल्द से जल्द गुस्ल जनाबत कर लिया जाए। लेकिन अगर जनाबत की हालत में, जैसे कि रात का वक्त है, तो फज्र तक आपको शरीयत ने मौका दिया है कि आप नमाज का वक्त आने से पहले पहले गुस्ल कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर खाने पीने की ज़रूरत पड़ जाए तो वज़ू कर लें, और वज़ू करने के बाद या वज़ू नहीं कर सकते, पानी मैसर नहीं है तो तयम्मुम कर लें, या सर्दी का मौसम है तो तयम्मुम कर लें, और कुल्ली वगैरह करके खाना चाहे तो खा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन बिला उज़्र जो है वो उस हालत में खाने को मना किया गया है। इससे निस्यान का मर्ज़ पैदा होता है और बच्चे भी कम दिमाग और ऐबी पैदा होते हैं, इसका ख्याल फरमाएं। अलबत्ता जनाबत की हालत में चीज़ों को हाथ लगाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने उस हालत में छू लिया और आपके हाथ पर निजासत नहीं है तो वो चीज़ें नापाक नहीं होती। ये मसला किसी ने गलत बयान किया है, इसका ख्याल फरमाया जाए।